Hello, children. Welcome to the digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School, Gadawara. I am Amit Toshniwal, your economics teacher. This video is for class 12th, chapter number 2 in economics, and chapter name is National Income, Concept, Aggregates and Computation. Part 1. Let us understand the meaning of national income first. Actually, the national income refers to national dividend, which is generally measured and shown with reference to a year. In fact, it is a flow and not a stock. In a broader sense, we can say national income is a money measure or value of net aggregate of goods and services occurring annually to the nation, which is a result of economic activities of the community at large, constituting of households, individuals, business firms and other institutions as a whole. In brief, the total goods and services produced in a country in a particular financial year. Is called national income or national dividend. So, economists have defined it. On your screen, you are seeing the definition of Marshall. So, Marshall says that the labor and capital of the country, acting upon its natural resources, produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kind. This is the true net annual income or revenue of the country or the national dividend. So it comes for 2 marks in board examination. Write the definition of national income given by Marshall. So you have to learn it by heart, word to word you will have to learn, because definitions cannot be produced by your own. You have to quote it, means which Marshall said. On the basis of it, we'll find some features of Marshall's definition. First, basis of measurement is taken annually. Second, when national income is found, it means it is calculated, then deduction of depreciation is done to get net aggregate. Third, net income, which comes after difference, the net income from foreign investment, that is difference between export and import, it is included in national income. Marshall believes that the national income is the cause of economic welfare. And fifth, certain items are not included. So, which items are not included according to Marshall? They are non-economic activities and activities done by uncommon man, not an average man, not an ordinary man, or the change and gain from
private and public property. So such things are not included in national income. Marshall's definition was criticized. So what are its criticism? Limitations, you can say. First, difficulty of number and quantity. Why? Because there are so many in variety, so many in number, and it is not possible to measure national income of country. It's very difficult task. Second, difficulty in finding out monetary value. There are some items, some commodities whose monetary value cannot be found out in money. Third, danger of double counting. Yes, यहाँ पर every possibility of certain items which can be counted twice, like wheat can be counted as agricultural product as well as when it is converted into flour. So there is a possibility कि wheat is counted in agricultural product and as well as in industrial product. Fourth, statistical measure is very difficult because total production of different commodities and services is never easy to find out, to calculate and to present them in statistical data. Second is PIGU. So PIGU says that the national dividend is that part of the objective income of the community, including, of course, income derived from abroad, which can be measured in money. He is not much differ from Marshall. So he is, I mean to say, PIGU is also influenced by Marshall. So first characteristic is same, measurement in money. It is suitable for developed countries. He too includes foreign income, and he too believes in economic welfare. So PIGU and Marshall are almost same. So there are some characteristics of PIGU's definition. It is not useful for backward countries or underdeveloped countries where barter system still prevails. अभी भी वहाँ पर barter system है, तो उनका कैलकुलेशन मनी के फॉर्म में नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ पर पॉसिबल नहीं है. एंड सेकेंड इज नैरो व्यू. यदि मान लो कोई वर्कर है, वो अपनी सर्विस दे रहा है किसी को, उसको 1000 रुपये मिल रहा है मान लो मेड सर्वेंट को, तो इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि उसको मनी में मिल रहा है. लेकिन मान लो वही औरत उस घर के मालिक से शादी कर ले, तो अब काम तो वो पहले जैसा ही कर रही, लेकिन अब उसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो इंक्लूड नहीं होगा अब नेशनल इनकम में. है कि नहीं. थर्ड इकोनॉमिस्ट इज फिशर. फिशर कहते हैं द नेशनल डिविडेंड और income consisted solely of services as received by ultimate consumers, whether from their material or services and human environment. बहुत कॉम्प्लेक्स बात कही है फिशर ने कि
वो सारी सर्विसेज आ जाएंगी, वो सारे गुड्स आ जाएंगे जो किसी कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं और जिसको अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं प्रोड्यूस इन अ ईयर इन अ कंट्री कैन नॉट बी कंजप्टेड fully. So something is remained as a stock. Everything is not a flow. तो कैलकुलेशन बड़ा ख़तरनाक काम है यहाँ पर, उसको तो कैलकुलेट करना और मुश्किल है। कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉजिकल डेफिनेशन। सेकंड, यहाँ पर उसने डिफरेंस किया है कैपिटल और इनकम में। मींस अल्टीमेट कंज्यूमर क्या करेगा? खर्च कर लेगा पैसे। तो जो खर्च कर लेगा इनकम में से, जो खर्च हो गया, मतलब वो एक्सपेंडिचर पे जोर देता है, कंजम्पशन पे जोर देता है फिशर। तो आफ्टर कंजम्पशन, आफ्टर एक्सपेंडिचर, वॉट एवर रिमेन्स इज सेविंग विच टर्न्स इनटू कैपिटल फॉर्मेशन। तीसरी बात है कंजम्पशन पे बेस्ड है, और मार्शल पीगू की जो डेफिनेशन है वो प्रोडक्शन पे बेस्ड है। फोर्थ इज रिलेशनशिप विद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। थोड़ा सा डिफर है यहाँ पर फिशर मार्शल और पीगू से। मार्शल और पीगू इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं, जबकि फिशर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करता है। यानी उसका सामाजिक कल्याण भी होना चाहिए, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी रेज होना चाहिए, उसके पास इनकम जनरेशन के चांसेस बढ़ना चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है उसके चांसेस बढ़ना चाहिए इकोनॉमी में, तब वो पॉसिबल है। क्रिटिसाइज, नॉट फीजिबल, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा होना। डिफ़िकल्टी इन एस्टिमेट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम मनी वैल्यू में एस्टिमेट कंजम्पशन के फॉर्म में नहीं कर सकते। कुछ चीज़ जो है कंज्यूम हुई है, अब आपके घर में अमरूद का झाड़ लगा है, आम का झाड़ लगा है, सब्जियां घर में लगा रखी हैं आपने, कंज्यूम तो हो रही हैं लेकिन वो काउंट नहीं हो रही, कंजम्पशन तो हो रही हैं, बट you won't bother about its monetary value. तो it's a production of commodity, but this is in your yard. आपके गार्डन, होम गार्डन में हो रही हैं सब्जियां और फल, जिस पे आप महीने का 2000 रुपये खर्च कर सकते थे यदि मार्केट से लेते तो, लेकिन होम गार्डन में, इसलिए नो बॉदरेशन। तो ऐसे फिर वो काउंटिंग में नहीं आ पाएगा नेशनल इनकम के। यदि वो बिकती मार्केट में तो उससे पैसा मिलता, या बाजार से लाते तो पैसा लगता। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं है। थर्ड इज प्रॉब्लम ऑफ गिविंग डेफिनेट लाइफ टू ईच कमोडिटी। विल हैव टू अलॉट अ डेफिनेट लाइफ टू ईच कमोडिटी। जितनी कमोडिटी हैं उनके लिए आपको एक लाइफ देना पड़ेगी कि इससे, इसके बाद वो ख़राब, वो उससे ज़्यादा भी चल सकती है। कंजम्पशन निकालने के लिए आपको पर ईयर कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जो ड्यूरेबल चीज़ें हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग है, जैसे टेलीविज़न मान लो 5000 का है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि पर ईयर कंजम्पशन कितने का है, क्योंकि प्रोड्यूस तो इन अ टाइम हो रहा है ना इकोनॉमी में। हर साल तो बदलते नहीं है टेलीविज़न, 10 साल चला मान लो तो 1 साल का खर्चा 500 रुपये सॉरी। तो कैसे काउंट होगा ये? नॉट पॉसिबल। हर एक कमोडिटी को एक लाइफ देना पड़ेगी। तो ऐसा थोड़ी कि 10 साल के बाद उसको फेंक देंगे टीवी को, है ना। देन डिफ़िकल्टी ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ड्यूरेबल गुड्स जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, तो उनका
एनुअल प्राइस निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और लास्ट है एक्सपेंसिव मेथड है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पैसा लगता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव मेथड है। तो अब सवाल उठता है तीनों में से सही कौन सी, अच्छी कौन सी? तो लगता तो है कि फिशर की ठीक है, ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर की बात कर रहा है। लेकिन कॉम्प्लेक्स है, यदि इस तरीके से नेशनल इनकम निकालेंगे तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कंजम्पशन है उसका निकालना बड़ा मुश्किल काम है एनुअली, तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और उससे जो भी पिक्चर क्रिएट होगा नेशनल इनकम का वो सही नहीं होगा। इसलिए मार्शल और पीगू दोनों ठीक हैं, बेटर है फिर उससे, क्योंकि वो प्रोडक्शन की बात करते तो प्रोडक्शन पता किया जा सकता है किसी देश के अंदर कितना हुआ, कंजम्पशन नहीं पता हो सकता, प्रोडक्शन पता हो सकता है। प्रोडक्शन डन बाय इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड, तो ये पता हो सकता है इजी। फिर उन दोनों में से भी पीगू जो है वो फॉलोअर है, मतलब यहाँ पर अपन देखें तो फॉलोअर है वो। पीगू की डेफिनेशन मार्शल से प्रभावित है, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो ब्रॉडर एस्पेक्ट लिए हुए मार्शल से, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पीगू है उन तीनों में बेस्ट है, उसकी डेफिनेशन ठीक है। अब ये 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, पर्सनल इनकम किसे कहते हैं? तो पर्सनल इनकम का मतलब हुआ द whole of national income earned by factors of production in 1 year is not available to them. Several deductions are made from it, such that corporate income tax, undistributed corporate profits, social security contribution, transfer payment. Transfer payment means जिन्होंने इकोनॉमी में कोई योगदान नहीं दिया, बैठे बैठे फ्री का पैसा पा रहे हैं, जैसे कोई मुआवजा मिला उनको, रिलीफ पेमेंट, बेरोजगारी अलाउंसेस जो मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, कंपनसेशन, भत्ता, या वृद्धावस्था में मिलने वाली पेंशन, ओल्ड एज पेंशन। So they are not contributing, they are not manufacturing or producing any goods or services to the economy or to the country. Even then they are receiving money, so this is transfer payment. कमा कोई और रहा है, टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट कर रही है और उनको बांट रही है। तो पर्सनल इनकम कैसे निकलेगी? It is actually that income which is actually received by the individuals in a country during the year. तो नेशनल इनकम में से पहले ये सारी चीज़ें माइनस होंगी जो अभी हमने बताई हैं तुम्हें पहली लाइन में। कौन कौन सी? SSC यानी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, CIT यानी कि कॉरपोरेट इनकम टैक्स, UCP यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, ये तीनों माइनस होंगे और उसमें प्लस होगा ट्रांसफ़र पेमेंट। जो फ्री वाले लोग हैं तो वो पैसा उनका नहीं था, ये उसका था जिसने पर्सनली यानी फैक्टर्स ने जिन्होंने कमाए हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर्स जो हैं 5, उन्होंने जो कमाया है उनका पैसा है वो। तो अपने पास ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, नेशनल इनकम में से माइनस करो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, कॉरपोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, और उसमें प्लस करो ट्रांसफ़र इनकम, क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम केवल उनको घर बैठे का पैसा दिया गया है बिना कुछ किए हुए, तो वो किसी का हिस्सा लेकर दिया गया है, किसी से टैक्स लिया है और उनको दिया गया फ्री। देन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो भी तुम्हारी पर्सनल इनकम है उसमें से गवर्नमेंट को जो इनकम टैक्स पे होता है वो माइनस कर देना चाहिए। तो इससे हमारे पास
डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आ सकती है। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। उससे पता चल जाएगा तुमने कितना खर्च कर लिया और कितना बचाया, दोनों को जोड़ दो तो तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम निकल जाएगी, है ना। तो दो तरीके हो सकते हैं, पहला इनकम माइनस इनकम टैक्स और दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इससे DPI यानी कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम निकल सकती है। फिर आते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के लिए सीधा फॉर्मूला है जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो नेशनल इनकम कितनी है उसको डिवाइड कर दो जितने लोग रह रहे हैं, उससे पर कैपिटा इनकम निकल जाती है और यही इसकी डेफिनेशन है। Per capita income refers to that income which is arrived at when we divide total national income by the total population. अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि जितनी टोटल पॉपुलेशन है वो पूरे के पूरे लोग काम नहीं कर रहा है, इकोनॉमी पे बर्डन भी है, वो 50% से ज़्यादा लोग जिनका बोझा कोई और ढो रहा है। बच्चा पैदा हुआ जब से लेके वो 20 साल तक काम नहीं करता, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ होता है, लेकिन वो भी पॉपुलेशन है, इसलिए वो भी टोटल पॉपुलेशन में इंक्लूड है। आदमी बूढ़ा हो गया, बिस्तर पर पड़ा है, वो काम नहीं कर रहा, लेकिन वो भी इंक्लूड है। भिखारी, संत, महात्मा, साधु, प्रीस्ट, काजी, मुल्ला, ये सब जो लोग काम नहीं कर रहे, कुल मिलाकर बेकार बैठे हुए लोग हैं जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे, दे टू आर इंक्लूडेड इन पॉपुलेशन। इसलिए पर कैपिटा इनकम जो होता है वो फीजिबल होता है, रियल नहीं होता। ठीक है, फिर डिफरेंस देख लो इसका, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है और पर कैपिटा इनकम माइक्रो का। नेशनल इनकम इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और पर कैपिटा इनकम बताता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करने के लिए हमें किसी कंट्री में किसी एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में टोटल गुड्स और सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुई हैं उसका टोटल करना पड़ेगा, और पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हमें टोटल नेशनल इनकम को डिवाइड करना होगा टोटल पॉपुलेशन से। नेशनल इनकम एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है और पर कैपिटा इनकम इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब ये नेशनल इनकम पे डिपेंड करती है। नेशनल इनकम एक्चुअली used for national development and welfare of the public, whereas per capita income का मीनिंग होता है to complete to fulfill personal needs. On the basis of national income, government policies are made, but for per capita income there is no policy at all. आदमी को अपने घर का बजट खुद बनाना, बनाए तो और ना बनाए तो, that's all. So this is the end of video. Here we covered 8 topics. You have to go through these topics, and later on we shall discuss about importance of national income, personal income and national wealth. Thank you.